Hello, everyone, and welcome to this Insta Live. My name is Nutan Kashyap. I'm a certified life coach. And in my last Insta Live, which was Tantrums to Tranquility, I had Dr. Charu Bansal with me. And I got many messages that people found it really useful. So I have invited Charu again. Let me just invite her. Hello, Charu. So Dr. Charu Bansal has joined. And Charu Bansal is doctorate in education. So she is Dr. Charu Bansal. She is with us. And as I said last in our last Insta Live, I got many messages from people that they really found it so useful in that series of toddlers, which was Tantrums to Tranquility. And on people demand, I have invited Charu Bansal again. So today she is with us. Dr. Charu Bansal is a life coach. Today she is with us as a parenting coach and a mindset coach. And topic for today's Insta Live is secrets to happiness at home. Welcome to this Insta Live, Charu. I hope you are good. And please tell me Thank, something about you. thank you, Nutan, and thank you everyone for joining and again inviting me with the great message about the today's topic, that is secret to happiness at home. Let's welcome some people who have joined. Wanty name underscore Mion, Nitin Sachdeva, Gupta Munjal, Soumya, Magnifying Impression Tanya, Hire 7970. Hi Tanya. Welcome everyone. Hire 7970. I am good. How are you? Archana Taneja, AFNA NCV underscore 95. Welcome you all on this Insta Live. And if you have any question about your toddlers or how to handle those or whatever problems you are facing with your little kids, please mention that in chat box so that Charu would be able to help us with that. So, Charu, as today's topic is secret to happiness at home, I really want to know that what is the meaning of it? Because everyone feels they are happy. So, please clarify that what is the meaning of this? Yes, Nutan. First of all, this first secret, the happiness at home. आपके घर में छोटा बच्चा है, वही एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, that he's coming with lots and lots of happiness in your home, and your home is definitely getting filled with the energy that child is coming. तो पहला सीक्रेट तो यही है, आपके घर में छोटा बच्चा है, it means there is happiness in your home. Of course, it is, Charu, because I'm also a mother of 4 years old daughter, and her birthday was on 18th of September. So, audience who are here and who are regularly following me, sorry, because in that week it was a birthday month for me and my daughter, so I did not do Insta Live in that time. So that's why I have invited Charu again to sort out all the problems related to your kids. And Charu, you are absolutely right, because she is a little bundle of joy in my home. तो सबसे पहला सीक्रेट तो यही है. दूसरा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी आज इस प्लेटफॉर्म पे, एंड दैट इज वी नीड टू लाइक सेट अ डेफिनेशन राइट ऑफ द हैप्पीनेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वही अभी हमारी डिस्टॉर्ट हुई है कि एक्चुअली में हैप्पीनेस क्या है. मोर ऑफ अ जो पैटर्न जो देखा जा रहा है बीइंग पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप में, हैप्पीनेस इज द डिफॉल्ट मोड जिसके साथ बच्चा बॉर्न हो रहा है, हमारे घर में आ रहा है. बट हमारा अभी क्या चल रहा है,
we are again and again exposing him or her to the pleasure mode. तो हम प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं, एंड मोर ऑफ अ पैटर्न जो देखने को मिल रहा है आज के पेरेंट्स में, दे आर टुवर्ड्स प्लेजर सीकिंग देमसेल्व्स एंड प्लेजर सीकिंग बना रहे हैं अपने बच्चों को. नाउ यू वुड लाइक टू आस्क मी कि व्हाट इज द डिफरेंस? Yes, I was going to ask that what is the difference of this pleasure and happiness? Yes. हिंदी में सुना है खुशी चाहिए, आजकल हर कोई कहता है मुझे खुशी चाहिए, बट अगर हिंदी की टर्मिनोलॉजी को हम ध्यान से समझें तो सुख एंड आनंद, दैट इज द अल्टीमेट पर्पस एंड गोल ऑफ अ लाइफ रादर देन खुशी. खुशी इज वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड दैट इज इन इंग्लिश वी से इट प्लेजर. इट्स शॉर्ट लिव्ड. आप आज एक बच्चे को आज एक खिलौना दिलाओगे, डेफिनेटली एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में वो उससे बोर होके दूसरे चीज की डिमांड करेगा. आप आज डोमिनोज का पिज्जा खिलाओगे, 4 दिन बाद वो चीज दोबारा से क्रिएट हो जाएगी उसके दिमाग में, बिकॉज प्लेजर इज बेसिकली आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, विच इज द वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड शॉर्ट टर्म गोल ऑफ अ लाइफ. It really एंड मोस्ट ऑफ अस आर, जो हम लोगों का भी पेरेंटिंग स्टाइल चल रहा है, दैट इज exposing our child a lot to the outside world, and we are like thinking कि भाई इसको खुशी मिल जाए, इसको खुशी मिल रही है, मैं इसको खिलौने दिला रही हूँ, खुशी मिल रही है, मैं इसको अच्छा खाना खिला रही हूँ, खुशी मिल रही है. बट what is the right approach is we just go towards the happiness mode in our life, जो ऑलरेडी बच्चे डिफॉल्ट मोड में लेके आया है, लेकिन हम उसको अपने जैसा बना देते हैं, प्लेजर सीकिंग. Okay. It's really awesome, Charu. I really love to know the difference between pleasure and happiness. Truly. Let's welcome some more people. Hi, Archana. Welcome, Chetan Gora. Iconic trainer under Sandeep, Anjali Mishra, Seraphic _ Simani, Anu Iotia, Yash Singhania. Welcome to all. Hello, Yash. So, Charu, as we were discussing about the difference of pleasure and happiness, and as you said that we parents try to give pleasure to our kids, like temporary pleasure, to give him toys, उसको पिज्जा दे दिया, ये सारी चीजें, but that is the only pleasure seeking things. It is not creating happiness in either our life or in our kids' life, right? So ऐसा होता क्यों है? Why do we do all these things? मतलब हम पेरेंट्स ऐसा करते क्यों है कि बच्चे को प्लेजर सीकिंग थिंग्स दे देते हैं, या तो शायद हम हैप्पीनेस की डेफिनेशन कुछ और समझते हैं, और या हम खुद को बिजी रखने के चक्कर में बच्चे को वो टेम्परेरी चीजें देते हैं. Why all these things happen? I would really love to know. नूतन, एक्चुअली ये सारी चीजें ना बहुत इतना रैंडम पेस में जा रही हैं 21st सेंचुरी में कि हम लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज एंड थिंक व्हाट इज हैप्पीनेस. नाउ आई विल टेल यू द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस. अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ये आप बच्चे को खुशी दे रहे हो या ये सुख की तरफ है, ये आनंद की तरफ है, हैप्पीनेस की तरफ है, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हैप्पीनेस इंक्लूड्स प्लेजर. फर्स्ट थिंग, happiness has 3 modes, 3P पे काम करती है happiness. First is the pleasure, the second is passion, and the third P is purpose. So until and unless we take ourselves and our child to the purpose of his life, passion in his life, pleasure in his life, ultimate happiness तब achieve होगी. And फर्स्ट थिंग, मैं बार बार बोल रही हूं, ये डिफॉल्ट मोड में बच्चा आया हमारे घर में, इसने जन्म लिया, ये डिफॉल्ट मोड में लिया. लेकिन हिंदी में भी सुना होगा कि ये माया का संसार है, तो हम माया जाल में फंस जाते हैं. तो इसी तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल वी आवरसेल्व्स, एंड देन फिर हम अपने बच्चे को भी उसी माया जाल में ले आते हैं. Completely agree, Charu.
बिकॉज चारू मैं ना डिस्कस करना चाहूंगी बिकॉज एज यू ऑल्सो राइटली सेड, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो जब तक वो छोटा होता है, वो बोल नहीं पाता, वो चल नहीं पाता, वो रो के चीख चिल्ला के अपनी सारी बातें समझाता है हमें, और वो तब तक रोता रहेगा जब तक उसको वो चीज मिल ना जाए। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, लाइक 7-8 मंथ, जब वो क्रॉल करना शुरू होता है ना, बच्चे की लाइफ और इजी हो जाती है। इंस्टेड ऑफ क्राइंग एंड स्क्रीमिंग, ही मूव्स टू दैट पर्टिकुलर थिंग दैट ही रियली वांट्स टू गेट। लेकिन जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है ना, चीजें तब चेंज होनी शुरू होती हैं, बिकॉज देन वी पीपल स्टार्ट, तुमको ये नहीं करना है, ये तुमको चोट लगा देगी, तुमको इसे हाथ नहीं लगाना है, तुम मेरा काम बढ़ा रही हो, बिकॉज एट टाइम्स आई ऑल्सो डू एंड एवरीवन डज इट. So I would really love to know that what is the real meaning of happiness. The only thing which we need to understand first कि happiness is not coming from outside. Pleasure definitely is related to everything outside, to this materialistic world. खाना खाया, आइसक्रीम खाई बच्चे ने, प्लेजर. बर्गर खाया, प्लेजर. कोई टॉय मनपसंद था, वो मिला, प्लेजर. It's coming from outside. But happiness is something which automatically gets generated, created in our inner world. बिल्कुल. चारू, एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं. Then why do we parents try to give pleasures to our kids instead of creating a happy environment or creating happiness in those kids? वही ना नूतन कि हमारी डेफिनेशन अभी राइट नहीं है. आप ये देखो कि अगर मैं आपसे अभी पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉय फॉर यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेनमेंट फॉर यू, ये सारी डेफिनेशंस जो हैं सबकी डिफरेंट आपको मिलेंगी. यू आस्क so many people around, you will get so many definitions. But the one thing which we need to again and again just contemplate ourselves, that is ki what is that right definition for me to be happy and get my child to be like joyous and happy and fulfilled and content in his or her life. तो चारू, हमें ये बताइए कि हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, बच्चों के लिए भी, खुद के लिए भी. एंड बिफोर दैट, सॉरी, लेट मी वेलकम सम मोर पीपल हु हैव जॉइंड. अनु, गुड आफ्टरनून. Tanya, thank you. Nice definition of happiness, pleasure, passion, purpose. Take it easy. And parenting_life coach Anjali. Welcome you all. And I would like to tell you that today topic of Insta Live is secrets of happiness at home. So if you have any question regarding your toddlers, because we are running a toddler series, so if you have any question, please mention in chat box. So Charu, please tell me that how to create happiness in our life. Yeah, before that, I would like to ask you, Nutan, what is your definition of happiness? First, tell me that. Charu, for me, happiness is something that we try to run after and that goes away from us. मेरे ख्याल से, आई होप आपको पता होगा, कस्तूरी वाली कहानी सुनी होगी ना, कस्तूरी मृग. कस्तूरी के पीछे एक हिरन भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है कि पता नहीं ये क्या चीज है, कहाँ से इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, और उस चीज के पीछे वो भागता रहता है, लेकिन उसको कभी ये रियलाइज ही नहीं होता कि खुशी हमारे अंदर ही होती है. And that is the exactly thing we people run after to be happy in our life, but that is inside us. It is a thing that we create. Because nothing comes to us when we become happy. We already have the things and it depends on us how we become happy with that. Because उस चीज में ना, जब हम चीजों के पीछे भागते रहते हैं, तो शायद हम अपना टाइम, एफर्ट, अपना जॉय सब खत्म कर देते हैं. लेकिन जब हम उन्हीं चीजों के साथ जीना शुरू कर देते हैं जो ऑलरेडी हमारी लाइफ में है, उस चीज का मीनिंग समझ आते हैं, तो दैट इज द हैप्पीनेस फॉर अस. एंड वी डू नॉट नीड, एज यू सेड, प्लेजर इज अ शॉर्ट टर्म things like toys, that pizza and everything. Definitely, if you get happiness from within, you would not need these things. That is the happiness definition for me. Yeah, truly said, Nutan. अब इसमें मैं अभी ये कहना चाहूंगी, हम अलग अलग लोगों से पूछेंगे, अलग अलग डेफिनेशन आएंगी, एंड नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग. इट इज अबाउट वंस परसेप्शन.
So I would like to just quote one definition which is given by a very famous psychologist. He's from University of Virginia. So he's a professor there, and Professor Dagner. So he said कि happiness is like a balloon. Wow. बिकॉज आप देखो कि बलून, अगर हमें कहीं पे किसी घर में बलून लगे हुए दिखेंगे तो हम क्या सोचेंगे, इनके घर में कुछ हाँ, सेलिब्रेट हो रहा है. celebration है. थिंकिंग कि वो सेलिब्रेशन के टाइम पे भी यूज बलून. तो हैप्पीनेस इज अ बलून, एंड द इट इज वेरी लाइट. द मोर लाइटर इट इज, द मोर अपलिफ्टेड वी फील, द मोर अपलिफ्टेड इट गोज. So it's like that कि happiness is there inside us, what you said, and it's like that air. But उसमें हम लोग ही क्या करते हैं, उस बलून में छोटे 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 छेद करते रहते हैं और वो एयर निकलती रहती है. दूसरा, या फिर उसमें इतना भरना चाहते हैं, इतनी एयर भरना चाहते हैं कि वो फूट जाए. तो बोथ द वेज आर लाइक हमें वो बैलेंस क्रिएट करना है अपनी लाइफ में कि एक हैप्पीनेस का एक मेजर मेरे लिए क्या बेस्ट है वो रखना है, रादर देन कंपेयरिंग माई सेल्फ, कंपेयरिंग माई पेरेंटहुड, कंपेयरिंग माई लाइफ. तो वो सारी चीजें विल बी लाइक दैट स्मॉल स्मॉल छेद जो हम करेंगे अपने बलून में. ग्रेट. चारू, एक चीज मुझे पूछनी है. लाइक एज यू सेड, वी ट्राई टू गिव प्लेजर these things to our kids to keep them busy or to get time for ourselves or something like that, or do we have any kind of fear? Yeah, definitely we have. So as you said, no, कि how we can like create happiness earlier. So the first and foremost thing which I really want to tell here, कि first of all, believe in yourself, believe in your child. Being parents, we are having a preconceived some notions हैं, कुछ conditioning already, cultural conditioning, कुछ मेरे ही childhood से conditioning मेरे mind में हुई है, जिसको मैं एक कहते ना एक benchmark बना लेती हूँ. तो there is a fantasy child in my mind. Yes. And the child which I have is the real child. तो मैं कई बार डिफरेंशिएट नहीं कर पाते बिटवीन माई फैंटेसी चाइल्ड, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, ऐसे मैनर्स होने चाहिए, ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो चाहिए चाहिए चाहिए, एंड दिस इज माई रियल चाइल्ड, एंड दिस रियल चाइल्ड हैज इट्स ओन PIPs. Now what is PIP? These are pre-installed psychological needs. Wow. So believing in your child potential, believing in your own ideology about your कहते हैं ना लाइफ को लेके, हैप्पीनेस को लेके, उस पर भी बिलीव करना है, and then just cater the needs of your child. This is the first thing. The second thing, when you said कि how we can create that happiness rather than pleasure, so the second thing is unconditional love. That unconditional love की definition हम कई बार पढ़ते हैं simply कि बच्चे को ना unconditional प्यार दो, लेकिन समझ नहीं आता ये unconditional है क्या. बिल्कुल. So unconditional love is something which does not have any condition. अब condition किस तरीके की होती है हमारे दिमाग में? We are somewhere output or we can say result oriented. Being parents also. हम कुछ इनपुट कर रहे हैं बच्चे में, वी आर जस्ट एक कहते हैं ना दिमाग में वो फिट है कि ये वाला आउटपुट निकलेगा. स्कूल भेज रहे हैं, ये वाले ग्रेड्स आएंगे. मॉल में लेके जा रहे हैं, इस तरीके का बिहेवियर होगा. ठीक है. और दूसरा फियर बेस्ड, वी आर ऑलवेज इन फियर. फियर बेस्ड क्या है? बताओ मेरे को, ये किस टाइप का फियर है that we are trying to give pleasure to our kids? This fear is coming from the space of our own failures, our own disappointments in life, our own judgments. This is coming from there. So हर time being fear based parents, we are always in the worry, मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए,
मेरा बच्चा किसी से कम ना हो, कोई क्या कहेगा कैसी माँ है, ये भी नहीं सिखाया। Social pressures. सोशल प्रेशर। तो दीज टाइप ऑफ एंजाइटी, वरीज एंड फियर, वो हम बच्चे में पुट इन करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ना, वो बलून है, वो बलून में एक छेद यहाँ से मारा, एक छेद यहाँ से मारा, और वो बेचारा हैप्पीनेस का जो इंडेक्स वो ऑलरेडी लेके आया था, वो धीरे धीरे निकलने लगा। तो वी आर नॉट कहते हैं ना, सर्विंग माई चाइल्ड, रादर आई एम जस्ट पुटिंग लॉट्स ऑफ प्रेशर, जो मेरा खुद का प्रेशर है वो उस पर थोपो फायर, लाइक दैट। Rightly said, Charu. That means कि हम अपने बच्चे को ना, we are trying to make them sensible. उसको ये भी आना चाहिए, उसको मैनर्स भी होने चाहिए, आके स्कोर गुड एंड एवरीथिंग। सेंसिबल बनाने के चक्कर में ना अपने बच्चे को नाम बना देते हैं, नहीं? राइट। And गेस्ट let's आते welcome हैं घर some में, more. Sorry. गेस्ट आते हैं घर में तो सबसे पहले हमारा क्या रहता है, ये वाली पोयम सुनाओ, मौसी को ये सुनाओ, अंकल को ये सुनाओ। ऐसे जैसे वो मंकी कहते हैं ना, बंदर, जब हम छोटे थे तब आता था कि वो बंदर नाच दिखाता था, तो हमें भी वही काम करते हैं कि ये हमारा मंकी है, ये हम है, चलो नाचो। हम जैसे कह रहे हैं वैसे करो। बिल्कुल। लेट्स वेलकम सम मोर पीपल, चारू। ममता मेहता _11, हेमा सथी, पॉजिटिव पर्ल्स, गार्गी आर्या, Mamta Mehta. There is a question from Mamta, Charu. What we should do to feel happiness, as I have everything but I cannot feel it. Yeah, very good question, Mamta. Basically, when you say na ki I am not able to feel that happiness, and I told you that happiness is within, वो बाहर से तो कहीं आने नहीं वाली, वो तो अंदर ही क्रिएट हो रही है। तो यू जस्ट लुक अराउंड योर सेल्फ, किस तरीके की सराउंडिंग्स में हैं आप, किस तरीके के लोगों के साथ हैं आप, किस तरीके की लाइफ सिचुएशंस में हैं आप। तो दीज आर लाइक सम वीड्स इन द गार्डन, कहते ना कि छोटे छोटे वो वीड्स हैं जो आपके गार्डन को स्पॉइल कर रहे हैं। तो उन वीड्स को धीरे धीरे हम रिमूव करते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं दैट डेफिनेटली विल बी क्रिएटिंग सम अनदर लाइफ, एंड उसको हम और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट यू हैव टू जस्ट गिव अ पॉज, और आपको ये समझना है कि मेरी डेफिनेशंस क्या हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर दैट सक्सेस इन माय लाइफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीइंग गुड इन माय लाइफ। तो उन डेफिनेशंस पे आप थोड़ा सा पॉज करके ध्यान दो, एंड देन डेफिनेटली वी कैन लाइक वर्क अपॉन इट। और जैसे आपने बोला कि आपके पास सब कुछ है बट यू आर नॉट एबल टू फील इट, but this is my conviction that when you set your definitions right, then definitely you are able to feel it from within. It will just come out. जैसे वो वाटर फाउंटेन होता है ना, कि पानी का फुहारा, कि वो फुहारा आ रहा है, वो ऊपर की तरफ ही आना है, ऐसे। तो इट्स लाइक दैट। And I would just like to add one more thing in it, Charu, that as Mamta said, I have everything but I'm not able to feel it. Start living in your present. Because you know what, I read it somewhere yesterday that when we think about it yard to yard, it really makes it hard. But when we think about inch to inch, it really makes that cinch. Work on that. Whatever you have in your present, try to be happy with that, because try to enjoy that, and you will feel the happiness, not with everything, with whatever you have in your life as of now. Let's welcome some more people. Aditya Jha, coach _ Pooja, and Charu, as we were discussing about the fears we have. Welcome Rohini 2534. How to overcome those fears? वेरी गुड क्वेश्चन नूतन। दिस इज एक्चुअली ये हम सबके साथ हो रहा है कि फियर है, और इसीलिए वी आर बिहेविंग सर्टेन मैनर विद आवर चाइल्ड, वी आर गिविंग दैट टू आवर चाइल्ड। अब इसको रिमूव कैसे करना है या ओवरकम कैसे करना है, तो पहले ये समझना पड़ेगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। वन इज पेशेंट पेरेंटिंग एंड द सेकंड इज डेस्परेट पेरेंटिंग। So that fear which is coming in our way, that is the symptom of the desperate parenting.
हर चीज रिजल्ट चाहिए, जल्दी से चाहिए। आज ABCD सिखा दी बच्चे को, आज किंडरगार्टन भेज दिया, बस वो A+ ही लेके आए। आज PTM में गए तो बस कुछ अच्छा अच्छा ही सुनने को मिले मेरे बच्चे के बारे में। तो लाइक दैट, तो दैट इज द डेस्परेट पेरेंटिंग का फीचर है वो। व्हेन आई टॉक अबाउट पेशेंट पेरेंटिंग, सो पेशेंट पेरेंटिंग इज ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस। You need to trust the process. You are giving best from your side in terms of values, in terms of behavior, in terms of manners. You are making an impact, or you are influencing your child in the best possible manner. So just trust that process. Don't be very anxious about कि आज ही बस किया है और आज ही मेरे को results मिल जाए। तो first thing is that. Then the second, yes, yeah. Then the second most important is when I said कि pleasure is coming from outside and happiness is creating from inside. Now we all know that एक बच्चा बहुत सारी एबिलिटीज लेके पैदा होता है, उसको हम innate abilities बोलते हैं। These are the core life skills जो already आया है बच्चे में साथ में। तो these abilities का अगर मैं बात करूं, you can say it curiosity, you can say it creativity, you can say it critical thinking. There are many, but I'm mentioning just 2-3 here. अगर हम उन जो उनकी innate abilities हैं बच्चों की, उसको अगर हम नर्चर करते रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज द पार्ट ऑफ बीइंग अ पेशेंट पेरेंट, वाइज पेरेंट, एंड वो सारा जो डेस्परेट पेरेंटिंग का स्पेस है ना, उसको हम पीछे छोड़ देते हैं। तो अब ये इनको प्रोटेक्ट कैसे करना है? क्रियोसिटी है बच्चे के अंदर, बहुत क्रियोसिटी है बच्चे के अंदर, बहुत क्रिएटिविटी है, लेकिन हम क्या करते हैं, मेरा बच्चा ना, मैं काम में लगी हुई हूँ, मेरा बच्चा बोर हो रहा है, इसको ना कुछ दे देती हूँ, तो बेटा ले मोबाइल ले ले, अच्छा बेटा टीवी खोल देती हूँ, अच्छा बेटा चल पार्क में चला जा बस। मतलब द वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैंने पहले पढ़ा, फिर अपनी लाइफ में अप्लाई किया, नाउ आई एम अप्लाइंग इट टू माई क्लाइंट्स, दैट लेट योर चाइल्ड गेट बोर। बोरडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, कि जब ये होता है ना, तब हमारा क्रिएटिविटी जीनियस जगता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने गिल्ट में, आई एम अ वर्किंग वुमेन, आई डोंट हैव टाइम फॉर माई चाइल्ड। तो बहुत सारे ऐसे हमने अपने अंदर, कहते ना, प्री कंसीव्ड कुछ नोशंस डाल के रखे हैं, कंडीशनिंग कर रखी है, और उसकी वजह से हम बच्चे को बोर ही नहीं होने दे रहे। आई एग्री विद यू चारू, बिकॉज कभी कभी ना ऐसा होता है कि जब तक बच्चा ना लाइक थोड़ा उसको प्रिवेसी नहीं मिलेगा, थोड़ा वो सोचेगा नहीं कि यार क्या करना चाहिए मुझको अपना बोर्डम खत्म करने के लिए, तो उसकी वो क्रिएटिविटी जागेगी कहाँ से? राइट, नहीं, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। एंड चारू, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, एज यू सेड कि हम पेरेंट्स जो है ना, हम अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखाने के चक्कर में ना, शायद वो जो रियली एक अल्टीमेट खुशी लेके आया ना, शायद हम वो भी खत्म करते जा रहे हैं। इट हैपेंड टू मी, आई वुड नॉट से दैट 100% I apply it, but most of the times I try to be patient. I try to understand that what does my baby want to say. अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ ना, I would like to share that example. मेरी बेटी स्कूल से आई and she was like, मम्मा मेरे को ना स्कूल में पनिशमेंट मिला, ठीक है? And the joy, that expression was on her face, that really made me so happy. मतलब जितनी खुशी के साथ वो इस चीज को एक्सप्रेस कर रही थी ना, मम्मा मेरे को स्कूल में आज पनिशमेंट मिली, तो आई ऑल्सो फेल्ट सो चीयर्ड अप। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तुमको क्यों पनिशमेंट मिला? देन शी एक्सप्लेन द होल स्टोरी। पता है मेरी मैडम ने बोला था ऐसे, हमने किया नहीं, हम बातें कर रहे थे तो उन्होंने हमें पनिशमेंट दी। बट आई डिड नॉट से बेटा तुमने कुछ गलत किया होगा, तुम्हारी मैडम ने तुमको क्यों ऐसा बोला, व्हाई डू यू बिहेव लाइक दिस, दिस इज रॉन्ग थिंग। अरे अल्टीमेटली शी इज लर्निंग दैट थिंग कि अगर लाइफ में कभी कभी कुछ गलत भी होना तो एंजॉय दैट। And second thing that I really felt so happy about her perception towards life, कि अगर कुछ गलत हो तो हमें पनिशमेंट मिलती है, लेकिन we should enjoy that and we should learn from that. तो इसलिए मैंने खाली वो पूरी स्टोरी सुनने के बाद ना, I just said one line
कि बेटा कभी कभी ना मैम की बात सुन लेनी चाहिए, फिर वो प्यार करती है ज्यादा, फिर वो पनिशमेंट नहीं देती. दैट्स ऑल व्हाट आई सेड, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू डिमोलिश दैट एक्सप्रेशन ऑन हर फेस एंड दैट cheerful smile. वो जिस पॉजिटिविटी के साथ उस चीज को ले रही थी ना, आई रियली वांट टू कंटिन्यू दैट शी शुड कंटिन्यू इट फॉर अ होल लाइफ. What do Very you well. think? Did I do right? Actually, you did very, very, very right. You were like you done justice to your child and to yourself being parent. अदरवाइज अगर आप देखो ऑर्डिनरली जो देखने में जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं लाइक वो ऑलवेज कम विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वो वाला चीज की वो पता नहीं क्या बदलना चाहते हैं बच्चे में बिकॉज परसेप्शन तो उनके अपने हैं राइट रॉन्ग दिस इज गुड दिस इज बैड दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव बट बच्चे को भी तो एक्सप्लोर करने दो. वही ना, वो भी तो लाइफ से सीखे चीजें कि क्या मेरे लिए अच्छा क्या बुरा है, एंड अगर कुछ गलत है भी तो टेक दैट इन पॉजिटिव वे. बिल्कुल. दिस इज समथिंग यू डिड वेरी वेल नूतन. Thanks a lot, Charu. And let's welcome some more people who have joined. Kanika, Ankit 12, Sangal Shiva, Milan Mehta. Welcome you all in this Insta Live. Archana K.32. So Charu, we have discussed that how to overcome it and all these things. I hope it would really bring a change in everyone's life. First in parents' life, then definitely it would work for their kids as well. And I just feel one thing, that we should not run after the things that we want to make our child this. We want to do this with our child. He should have manners, he should have high scores and everything. Instead of all these things, let it be what he is. At least उसको वो childhood period जो 6-7 साल है, let them enjoy. खुद सीखेंगे ना चीजें, नहीं सेंसिबल बनाने के चक्कर में कहीं ये ना हो कि बच्चा जो रियली में चाहता है वो हमें कभी बता ही ना पाए. देन वी पेरेंट्स वुड हैव कंप्लेन कि यार हमारा बच्चा ऐसा है, हमें कुछ बताता नहीं है, ये है वो है, ऑल दीज थिंग्स. नहीं, व्हाट डू यू फील चारू अबाउट इट? एग्जैक्टली नूतन. एक्चुअली ग्रेड्स हमें ऐसा लगता है कि ग्रेड्स उनके बढ़ रहे हैं वो अच्छा बिहेव कर रहा है अच्छा लर्न कर रहा है समवेयर डाउन द लाइन इट इज आवर ग्रेड्स जो हमें अगर कम आएंगे तो वी आर डिसअपॉइंटेड विद इन और अच्छे आएंगे तो बस एप्रिसिएशन ही एप्रिसिएशन बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं कैसे बड़ा किया अपने बच्चे को. yes. तो उसको हमें थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टीनेजर्स उनके लिए Yes. बहुत चीज डिफरेंट है बट टिल द एज ऑफ 7-10 योर चाइल्ड इज बिल्डिंग आप ना एक बिल्डिंग की फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो एंड दैट फाउंडेशन शुड बी लाइक कि 100 साल चलने वाला बिल्डिंग इट शुड बी लाइक दैट. तो वो बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए द मोर लव यू पोर द मोर सॉलिडिफाई यू कैन मेक इट. Now, love coming out from the space of fear, anxiety, and worries will not cater at all in this 21st century. आपको पता है जो इस टाइम बेसिक लाइफ स्किल्स हैं 21st century kids के लिए, that is resilience, that is endurance, and the one more terminology is coming that is adaptability quotient. It's not about IQ or EQ, it's about now AQ. So definitely now the parenthood has to be something very very different which we have experienced in our childhood is not at all applicable right now. तो definitely हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ पुराना लेके कुछ नया जोड़ के एक नया इनोवेशन करना है. हाँ, बिकॉज बिल्कुल स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग हैज चेंज्ड अ लॉट. क्योंकि जैसे होता है ना, आई रियली ऑब्जर्व, क्योंकि मेरी मम्मा जो बोलती है ना, तुम ऐसी नहीं थी, मतलब तुम्हारे टाइम पे ऐसा, तुम लोग इतने शरारती नहीं थे, तुम लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं थे. बिकॉज आई ऑल्सो गेट दिस पॉइंट कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी के केस में हो या उनका जो like they are curious to know everything, that kind of thing. So yes, there is change. So definitely I think we parents should also change according to that. But the ultimate factor is love, and we should love our kids without any condition and with patience, I feel. Right, Charu? Let's welcome some more people. Welcome Midas Touching Healing. Sridevi, hello. Hello, Kanika. Gupta Shano, welcome.
0901.akash, Archana K32. Welcome all. And Charu, as this information would really be helpful, and definitely I also learned a lot of things from you today. What is the message that you would like to give to the audience today? Thank you so much for this opportunity. Actually, I would like to give a very simple formula, simple hack to be that wise parent, and that is AEIOU. Always remember that AEIOU. Now, what is A? Accept. Accept your child as he or she is. जैसा भी है, कितना टेढ़ा है पर मेरा है. 1A, I would like to add more, that is absolutely. Absolutely, we would accept. So accept your child, because as I already mentioned, your child is coming with PIPs, that is pre-installed psychological needs. आप उसको understand करो, उसके हिसाब से चीजें चलाओ, ना कि बहुत सारे लोग आसपास कुछ कहते रहेंगे. हाँ बिल्कुल. उनको थोड़ा साइड करो. तो accept your child as he or she is. Then the E, empower your child with your kindness. Now, what do I mean by that? Being kind is very important part than being right, because right is your definition. Being right or being wrong or being positive or being negative, that is your definition. Maybe it's not suiting your child. Be kind. And then you see कि वो कितना empower होता है आपका बच्चा. अगर मैं इसको relate करती हूँ अपने childhood से, तो मुझे याद है I was in nursery class or something, and I came with my notebook. Some remark was written. I was very small, I couldn't read that remark, but something was written about my handwriting. Now I showed it to my father. My father just opened that notebook and he was like, कितनी अच्छी handwriting है. मतलब Wow. कितना मोतियों जैसा लिखा है चारू ने. Like that, he was just appreciating me. He was so kind about it. That made an impact to me कि I should work upon my writing. Rather, I don't know about that remark, but definitely that remark was in red pen and was something कि कुछ था मेरी writing के बारे में. लेकिन मुझे नहीं पता आज तक. मुझे इतना पता है कि मेरे पापा ने मेरे को किस तरीके से उस चीज को empowerment दिया मुझे. जी. That is E. Then coming to I. Now I is influence with your own personality. That will create an impact. बहुत सारी चीजें हमें बच्चों से चाहिए. ये करना है, ऐसे करो. Reflect upon yourself first. Introspect upon yourself. Then ask your child. If I say about my teenager, तो I used to like, अब पढ़ लो, अभी इतना पढ़ना है, अभी वो. तो always I first of all, मैं खुद इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ कि क्या मैं जितना इससे मांगना चाह रही हूँ, क्या मैं उतना खुद अपना जो भी मेरा काम है, क्या मैं उतना 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर पाती हूँ. If the answer is no, then I am not at all saying this to my child कि ये कर लो. Definitely, that means we should raise ourselves first before raising our child. Yes, definitely. Then O. O is very important, because यहाँ पे you have to obsess yourself to create memories rather than expectations. Creating that memory. जैसे आज मेरे को वो memory क्यों याद है कि मेरे father ने मुझे कितना प्यार किया, वो बहुत पुरानी बात है, नहीं याद रहनी थी अभी तक, बट याद है. क्यों? Because that had created memory in my mind, and that is very beautiful memory, which has empowered me, which has given me that opportunity to create that happiness from within, what I was talking in the earlier part. तो obsess yourself to create memories rather than expectations. Expectations बहुत सारी लेके आ रहे हैं हम बच्चों के लिए. ऐसे भी करे, ऐसे भी करे, स्कूल में भी ऐसे परफॉर्म करे, घर में भी ऐसे परफॉर्म करे, खाए भी ऐसे, चले भी ऐसे, सोए भी ऐसे. बिल्कुल आजकल यही हो रहा है. बट एटलीस्ट बच्चे को भी उतना स्पेस मिलना चाहिए दैट व्हाट ही वांट और शी वांट्स टू डू दे कुड डू. Yeah, definitely.
इसमें मैं एक चीज यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि यहाँ पे ना वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. इफ आई टॉक अबाउट से गेम्स, तो कुछ स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड होने चाहिए. जो स्ट्रक्चर्ड है हमें पता है हमें वो थोड़ा डिसिप्लिन भी करना है बच्चे को मोगली नहीं बनाना, है ना. तो दैट बैलेंस हैज टू बी मेंटेन्ड बिटवीन दैट स्ट्रक्चर्ड जो हम एब्जॉर्ब करवाएंगे, धीरे धीरे सीप इन करवाएंगे, एंड दैट अनस्ट्रक्चर्ड जहां पे वो फ्री है. तो इट्स लाइक क्रिएटिंग दैट बैलेंस, और वो बैलेंस बहुत अच्छा एक आउटपुट मिलता है, डेफिनेटली मिलता है. It's really awesome, Charu. Yeah. And the second and the last one is you. You has two parts. One is unconditional love, जो हमने already discuss कर लिया है, and the second is understand their PIPs. So now we are aware parents, no, we are awakened parents. तो why not understand these PIPs कि मेरा बच्चा कौन सी पर्सनालिटी एंगल में लाई कर रहा है, मैं वैसे ही ट्रीट करूंगी. तो this is very very important for all the parents who are raising 21st century kids, and we are coming from the 80s 90s, right? So, Of course. Let's welcome two more people. Ashish.goel, welcome Ashish, and welcome Sameer Sam too. Charu, it's a really pleasure to have you on my Insta Live. I am really happy about that because, as we discussed, pleasure and happiness, so I am really happy about it. Thank you for your time and thank you for all these wonderful information that you provided to me and to my audience. It was really lovely to be on this Insta Live with you, Charu. Definitely, thank you so much Nutan, and thank you everyone who are just watching right now, जो बाद में recordings देखेंगे उन सबको भी have a nice day. Be wise parent, don't become good parent. This is the last thing I really want to say. Bye bye. Bye.